Good morning, everyone. Thank you for joining in. Like Monica rightly said, this is a customized session for bakers, and she's briefed me in detail about the pain points जो आप लोग on a daily basis जो आप लोग जिससे struggle करते हैं. So this is going to focus on that. Now, like I like to start all my classes, we're going to start basically by grounding ourselves. यूजुअली क्या होता है ना, हम लोगों के दिन में इतनी डिमांड्स होती हैं एक रेगुलर रूटीन में that we forget to kind of be in the present sometimes. तो बहुत सारी चीजें ऑटो पायलट मोड पे हो जाती है, मैकेनिकली हो जाती हैं. आज आप खास सुबह सुबह टाइम निकाल कर आए हैं, so I hope that you be present throughout and you benefit from that awareness all the more. So this is how I like to start all my classes. I would request you to sit comfortably, वज्रासन या सुखासन जो भी आपके लिए comfortable है. आप इस तरह से हाथों को ज्ञान मुद्रा में जोड़ सकते हैं. Okay, joining the tips of your thumb and forefinger, this is the Gyan Mudra, and then you can keep your hands on your thighs. Okay, आप comfortably रख लें. What I will do is I will spotlight Monica for some time, तो ताकि जो लोग बाद में भी join करते हैं वो भी इस तरीके से बैठ सके. Alright, और आंखें हम हल्के से बंद रखेंगे जब तक I tell you to open your eyes. आप please अपनी आंखें बंद करें. Okay, चलिए, let's get comfortable and let's get started. Keep your eyes closed, keep your elbows slightly bent. And you may want to roll back your shoulders. कांधों को उठा के एक बार पीछे की ओर घुमा दें और पीठ को जितना हो सके सीधा रखें. Okay, so you can lift and roll back your shoulders. Keep the spine tall, chin parallel to the floor and stay there. Perfect. Take a slow and deep breath and gently exhale. We will start by scanning through the entire physical body. पैरों से शुरुआत करते हुए शरीर के एक एक अंग की ओर ध्यान लेकर जाए. If you come across any body part that seems tightened or clenched, and it is within your control to release that tightness, please do so. Remember to keep your spine upright, shoulders relaxed, and face forward. फेशियल मसल्स की ओर खास तौर पर ध्यान दें. माथे पर अगर शिकन हो तो उसे रिलीज करें. पलकें और होंठ हल्के से बंद रखें. अब अपना ध्यान अपने विचारों की ओर ले आए. Whatever thoughts are occurring to you naturally at the moment, stay aware of those thoughts. Focus on those thoughts that will help you in today's practice. The more you focus on the productive thoughts, the more the other unnecessary thoughts will start receding. अब अपना ध्यान आती जाती सांसों की ओर ले आए. इस समय ना ही सांसों को कंट्रोल करना है, ना ही उन्हें बदलना है. Simply stay connected with the natural rhythm of your breath. एक बार गहरी लंबी सांस भरें, धीरे धीरे रिलीज करें. जब भी आप तैयार हो बहुत आराम से आंखें खोलें. Please stay seated. We will get started. Veena ma'am and Shama ma'am, whenever you are ready, please turn on your videos. We are starting from here. तो सबसे पहले we are going to start with neck movements, as Monica has told me rightly, because बहुत देर आपको खड़े रह के और झुककर काम करना पड़ता है. We constantly at a certain angle with the neck, ना? तो we are going to first and foremost start with neck movements. जितना हम लोग neck का ध्यान रखेंगे, long run में हमारे लिए उतना beneficial है, because it's a very sensitive part of the body anyway. तो आप आराम से बैठे. We'll start with neck movements. I'm going to do it and Monica is going to follow me, so you'll be able to see her. पहले आप अच्छे से सांस भर ले.
सांस छोड़ते छोड़ते आप फेस को पूरा एक तरफ टर्न करेंगे, बाकी बॉडी वैसी की वैसी रहेगी, फेस को आप टर्न करें एंड प्लीज स्टे देयर, कंटिन्यू टू ब्रीथ। वील स्टे फॉर 1 2 3 4 5। इनहेल करते हुए सामने लेकर आए चेहरे को, एक्सहेल करते हुए टर्न ओवर टू द अदर साइड नाउ, पूरा दूसरी तरफ टर्न कर लें एंड स्टे देयर। शोल्डर से बिल्कुल घूमना नहीं है, उसका ध्यान रखेंगे। 1 2 3 4 5। इनहेल एंड सेंटर, एक्सहेल एंड चेंज। जितना आपकी बॉडी अलाउ करती है उतना आपको नेक को टर्न करना है। अगर आपने राइट में टर्न किया तो लेफ्ट में आपको अच्छा स्ट्रेच फील होगा। वंस अगेन इनहेल एंड सेंटर, एक्सहेल एंड चेंज ओवर टू द अदर साइड। सांस भरते भरते फिर से सेंटर में आ जाएं, सांस छोड़ते छोड़ते दूसरी तरफ चले जाएं एंड स्टे देयर। 1 2 3 4 5। वन मोर टाइम, इनहेल एंड सेंटर, एक्सहेल एंड चेंज। कम से कम 3 रेपिटेशंस करें। 1 2 3 4 5। इनहेल एंड सेंटर, exhale and change. Last time on the other side. 1 2 3 4 5। Now slowly back to center. अब हमको पीठ को सीधा रखना है, चिन को नीचे ले जाना है and stay there. So you'll get a stretch on the back side of your neck. Please stay there. 1. This might feel a little painful. 3 4 5। Slowly back to center. अब आप फेस को ऊपर की तरफ उठाएंगे, आपके होठों को बंद ही रखेंगे। प्लीज डू नॉट ओपन योर माउथ एंड स्टे। 1 2 3 4 5। डाउनवर्ड्स अगेन, धीरे धीरे सेंटर में आए, फिर से चिन को पूरा नीचे लेकर जाए। मेक श्योर द बैक स्टेज अपराइट, डू नॉट राउंड द बैक। 1 2 3 4 5। नाउ स्लोली बैकवर्ड्स, चेहरे को पूरा ऊपर आप सीलिंग की तरफ उठा दें, होठों को बंद ही रखेंगे। 1 2 3 4 5। डाउनवर्ड्स, फिर से पूरा नीचे, पीठ एकदम सीधी, chin down and stay. Feel the stretch on the back side of the neck. 1 2 3 4 5। Slowly upwards again for the last time to stretch the front side of your neck nicely. 1 2 3 4 5। Slowly back to center and stay. अब अगला वाला we going to do a side bend with the neck. So everybody lift, पहले अपने लेफ्ट हाथ को साइड में लेकर जाइए जैसे मैंने लिया है। सांस भरते हुए उसको सीधा ऊपर उठाइए। अब ऑपोजिट कान को कवर कर लीजिए उस हाथ से और सर को अपने लेफ्ट साइड पे इस तरह से बेंड कर दीजिए। मेक श्योर दैट द शोल्डर्स आर देयर, मतलब डोंट बेंड विद द अपर बॉडी, ओनली बेंड। you'll get a stretch on the right side of your neck. Please maintain that. 1 2 3 4 5। अब धीरे से आप हाथ को रिलीज कर दें, नेक को भी सेंटर में ले आए। इमीडिएटली स्टार्ट ऑन दी अदर साइड। सांस भरते हुए अपने दूसरे हाथ को ऊपर उठाएं, ऑपोजिट कान को कवर करें और हेड को अपने राइट साइड पर टिल्ट कर दें। कीप योर शोल्डर्स रिलैक्स्ड, राइट शोल्डर को नीचे की ओर बिठा दीजिए। 1 2 3 4 5। स्लोली रिलीज एंड चेंज। 3 बार करेंगे। फिर से अपने लेफ्ट हाथ को ऊपर उठाएं, कवर द ऑपोजिट ईयर, टिल्ट द हेड टू योर लेफ्ट साइड, कीप द शोल्डर्स रिलैक्स्ड एंड स्टे देयर। 1 2 3 4 5। स्लोली रिलीज एंड चेंज। दूसरे हाथ को ऊपर उठाएं, cover the ear, take it on this side, stay there. 1 2 3 4 5। Slowly release. One more time on each side. Inhale करते हुए लेफ्ट हाथ सीधा ऊपर, cover the opposite ear, tilt the head onto your left side and stay. 1 2 3 4 5। Slowly release. Last time, दूसरे हाथ को ऊपर उठाएं, cover the opposite ear onto the left side, sorry, onto the right side. 1 2 3 4 5 and slowly relax. Excellent. चलिए अब हम लोग थोड़ा शोल्डर्स के ऊपर काम करेंगे। तो इस तरह से सबको अपने थम्स जो है शोल्डर के आउटर रिम्स पे रखने हैं।
आगे आपको एल्बोज को ज्वाइन करना है, अगर वो ज्वाइन होते हैं तो। फिर आपको दोनों एल्बोज को सीधा ऊपर उठाना है टुवर्ड्स द सीलिंग। फिर उनको पूरा पीछे पुश करिए सो योर चेस्ट एक्सपांड्स, वेरी गुड, ब्रिंग देम डाउन, जॉइन द एल्बोज बैक इन द सेंटर। फिर से ये हमको 5 बार करना है। इनहेल एंड टेक देम ऑल द वे अप, ऑल द वे बैक, डाउन एंड बैक टू सेंटर। प्लीज कंटिन्यू। और 3 करना है आपने, सांस भरते हुए हाथ पूरे ऊपर, पूरे पीछे, वेरी गुड, देन जॉइन बैक इन द सेंटर। लास्ट 2, पूरा ऊपर, पूरा पीछे, पूरा नीचे। मोनिका, स्टिक योर बाइसेप्स टू योर ईयर्स ताकि आप और रेंज यूज कर सके। वेरी नाइस, करेक्ट। We have a 360-degree range in the shoulders. Let's try and use as much as possible. Last time. Great. अब इसका exactly उल्टा हमको करना है, तो अब elbows को नीचे से पहले पीछे ले जाएंगे, all the way back. Bring the biceps close to the ears. Very nice. Join the elbows in the center if you can. And continue. All the way ऊपर, all the way पीछे. Wonderful. You might feel some tension in the shoulders and the adjoining muscles because आप लोगों के काम में shoulders का बहुत involvement होता है. तो आप भले इसको धीरे धीरे करें, लेकिन आप प्लीज इसको रेगुलरली करते रहे. In the middle of your work, take a breather, do these movements. Okay? तो धीरे धीरे आपका ये जो टेंशन है वो रिलीज होने लगेगा because of improved blood circulation. Yeah. पूरा ऊपर and down and relax. Bus. Done with 5. So I could sense from Monica's facial expressions that there is tension in this area. Ab regularly karenge, you'll feel the difference. Now we will do what is known as the seated Parvatasana, which is the seated mountain pose. Very simple, very effective. तो आपको आराम से जैसे आप बैठे वैसे बैठे रहना है. Once you may want to lift and roll back your shoulders like this. Great. दोनों हाथ साइड में. अब सांस भरते हुए दोनों हाथों को आप ऊपर उठाएं. टॉर्सो को लंबा करते जाएं. इंटरलॉक योर फिंगर्स एंड टर्न योर पाम्स अपवर्ड्स. यस, अब आप आंखें बंद कर सकते हैं एंड प्लीज लिसन टू मी केयरफुली. आपके जो दोनों हाथ है वो कानों से हल्के से पीछे ले जाना और एकदम ऊपर की ओर खींचना. ऐसा समझिए ऊपर किसी ने आपके हाथ पकड़े हैं एंड इज हेल्पिंग यू टू स्ट्रेच टू योर मैक्सिमम कैपेसिटी. आई वांट यू टू लेंथन द साइड्स ऑफ योर चेस्ट एंड योर वेस्ट. ओके, एकदम लंबा कर दीजिए टॉर्सो को. You should feel very light on the lower back and lower abdomen while doing this. Last 3, 2 and 1. अब धीरे से आप हाथों को अलग कर लीजिए, उनको नीचे लेके आइए. Keep the spine tall even after you bring the hands down. Okay? फिर से शुरू करेंगे. सांस भरते हुए धीरे धीरे हाथों को ऊपर लेंगे. Lengthen the torso. Interlock the fingers and turn the palms upwards. And maximize the stretch. ओके, कॉन्शियसली आपका ध्यान जो है वो चेस्ट के अगल बगल, वेस्ट के अगल बगल ले जाइए और उन मसल्स को लंबा करिए. कॉन्शियसली ब्रीथ. इट विल टेक अवे द टेंशन फ्रॉम योर लोअर बैक एंड लोअर एब्डोमेन. लास्ट 3, 2, 1. धीरे से हाथ अलग, आराम से नीचे. वन लास्ट टाइम, सेम थिंग. सांस भरते हुए धीरे धीरे हाथ ऊपर ले. Interlock the fingers, turn the palms upwards, maximize the stretch. आंखें हल्के से बंद. जितना ऊपर की ओर लंबा कर सकते हैं टॉर्सो को प्लीज करें. By the time you reach the 3rd rep, you'll feel the difference. Last 3, 2 and 1. धीरे से हाथ अलग, आराम से नीचे and relax. Okay? अब इसके बाद हम थोड़ा साइड बेंड करेंगे. देखिए हमारे रूटीन में ऐसा कोई काम नहीं होता है जिसके लिए हमको साइड में बेंड करना पड़े. तो वो मसल्स हमारे टाइट भी हो जाते हैं और हमारी मोबिलिटी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है. सो आई एम गोइंग टू डू दिस एंड मोनिका इज गोइंग टू फॉलो मी. शी स्पॉटलाइटेड, तो आप वो देख सकते हैं. तो मोनिका, हम लोग ऐसे लेफ्ट हाथ को साइड में रख लेंगे जमीन पर ऑन द फिंगर टिप्स. वी विल लिफ्ट एंड रोल बैक द अदर शोल्डर. सांस भरते हुए हम अपने दूसरे हाथ को सीधा ऊपर उठाएं और एकदम लंबा और खिंचा हुआ रखेंगे. अब जो हाथ जमीन पर है उससे हम साइड में स्लाइड करेंगे. लोअर बॉडी हमारी जमीन पर ही रहनी चाहिए, उसका ध्यान रखेंगे. जो हाथ नीचे, उसके एल्बो और शोल्डर को थोड़ा रिलैक्स कर देंगे. ऊपर वाले हाथ को सीधा और लंबा रखें और ध्यान दीजिए ऐसे नेक को साइड में नहीं करेंगे, इससे नेक पे बहुत वेट आता है. तो नेक को हम सीधा रखें. कॉन्शियसली ब्रीथ एंड कंटिन्यू टू स्टे देयर. लास्ट 5, 4, 3, 2,
1। अब हम फिर से सेंटर में वापस आ जाएंगे। टर्न दिस palm around, slowly bring it down and we repeat on the other side. Okay? अब आप दूसरे हाथ को नीचे रखेंगे। एक्सीलेंट। सांस भरते हुए दूसरा हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए साइड बेंड में जाएंगे। वेरी नाइस। Make sure that your neck is at a comfortable angle. That is very important. Great. Feel a stretch on this side. जो हाथ ऊपर है उस तरफ आपको stretch आना चाहिए। Last 3, 2, 1. Slowly come back to center and change. ये हम एक एक बार और करेंगे। Okay? फिर से अपने राइट हाथ को ऊपर उठाएंगे। Stretch the whole side and then you slide the other hand on the floor. वेरी नाइस। ऊपर वाला हाथ कोई खींच रहा है ऐसा समझ के उसको लंबा रखें। अपने नेक का जरूर ध्यान रखें। लाइक मोनिका करेक्टेड हरसेल्फ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ द सर्वाइकल एरिया ऑफ द नेक। लास्ट 3, 2, 1। स्लोली कम बैक टू सेंटर। लास्ट टाइम हम चेंज करेंगे। दूसरा हाथ ऊपर उठा लेंगे, लंबा करेंगे और फिर साइड बेंड में जाएंगे। Wonderful. Already her range looks better. With regular practice, it will get even better. Last 3, 2, 1. Slowly come back to center and relax. Monica, give us a thumbs up if you're feeling like, oh, the body is feeling nice. Excellent. Great. अभी अगला वाला ध्यान से देखेंगे. I am going to spotlight myself for that one. एक बार आप देख लीजिए, उसके बाद में आप चाहें तो करें। ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इट इज अ वेरी सिंपल बट वेरी इफेक्टिव ट्विस्ट जो आपको बहुत हेल्प कर सकता है। तो आप इसको ध्यान से देखें। आई गिव यू द बेस्ट एंगल पॉसिबल और फिर आप इसको करें। तो इसमें हम क्या करते हैं, हमको बैक से बहुत सारा टेंशन रिलीज करना है। तो हम इस तरह से साइडवेज फेस करके बैठेंगे। पहले आप देख लें, उसके बाद आप करें। फिर हम एक हाथ को इस तरह से जमीन पे रखेंगे ऑन द फिंगर टिप्स। पूरी सांस भरेंगे और सांस छोड़ते छोड़ते हम दूसरे हाथ को नी से थोड़ा ऊपर थाई के पास लेंगे और ये जो हाथ जमीन पर है इसको पीछे की तरफ चलाएंगे। हो सके तो रिस्ट को भी रोटेट करेंगे। यू हैव टू यूज बोथ योर शोल्डर्स। ओके, तो इस शोल्डर को भी पुश करिए, इस शोल्डर से भी पुश करिए और कोशिश करेंगे कि आपकी अपर बॉडी, सी व्हेन आई स्टार्टेड माय अपर बॉडी वाज फेसिंग हियर, the idea is to turn the whole upper body to the other side. That is where the twist comes in. And we keep the spine perpendicular. So we don't want to be sitting like this. जहां आपका बैक ऐसे लीनिंग है वो हमको नहीं चाहिए। हमको स्पाइन जमीन से परपेंडिकुलर चाहिए। तो इफ यू डू इट राइट फ्रॉम दिस शोल्डर, ऐसे डायगनली आपको पूरा स्ट्रेच फील होगा। इट विल गिव अ वंडरफुल रिलीज टू योर बैक मसल्स। और पीछे की तरफ चेहरा रखना है, आंखें आप बंद रख सकते हैं, but make sure you're facing backwards. We'll stay for 10 seconds. फिर बीच में ब्रेक नहीं लेंगे। इनहेल करते हुए सेंटर में आएंगे, एक्सहेल करते हुए तुरंत दूसरी तरफ हम ट्विस्ट करें। दोनों तरफ करना बहुत जरूरी है, तो वो हर बार करें। तक हमने जो किए हैं ना, ये आसन रहे हैं मोर और लेस। आसन में हम होल्ड करते हैं। इट इज अ पोस्चर, इट इज अ पोज, सो वी स्टे इन द पोज फॉर सम टाइम एंड स्टेइंग इज रिकमेंडेड। अब जो हम कर रहे हैं दैट इज अ क्रिया। क्रिया मीन्स अ मूवमेंट। सो दिस इज द, इफ यू had any exposure to yoga, you would have heard about the cat and cow pose or the marcher kriya, which we are going to do now. तो एक बार आप पहले ध्यान से देखें, इसको आप ठीक से समझें और उसके बाद करें। This can be a game changer for you because it's excellent for the entire spine. तो इसमें एक तरीके से हम मेजरमेंट करते हैं कि हमारे हाथ हमारे पैरों से कितनी दूरी पर होने चाहिए। उसका रीजन है which I will tell you. तो उसको मेजर करने का तरीका ये होता है कि आप अपने नीज पर आते हैं इस तरह से। पहले आप देख लीजिए, अभी करिए मत। इस तरह से आप एल्बोस को अपने नीज से चिपका देते हैं। ऐसे गैप नहीं रखना है आपको, अपने एल्बोस को नीज से चिपका देना है। और जहां आपकी सबसे लंबी उंगली खत्म होती है, टिपिकली द मिडिल फिंगर इज द टॉलेस्ट फिंगर, तो जहां वो खत्म होती है वहां आपको अपने रिस्ट को लेकर आना है। सो इफेक्टिवली यू आर वॉकिंग वन palm length forward. ये जरूरी इसलिए because when you come on all fours, your hands will be in a straight line, your hip to knee will be in a straight line. अगर आप कुछ भी जजमेंट से करेंगे तो हाथ पीछे भी रह सकते हैं, हाथ बहुत क्लोज भी रह सकते हैं। तो that's why this measurement is important. एक बार फिर से बता रही हूँ, we stick the elbows to the knees, जहां सबसे लंबी उंगली खत्म होती है, we bring the base of the palm there. Okay, so you come on all fours like this. हम knees को hip width apart रखना है, पीछे से बड़े वाले टोस को जॉइंट रखते हैं। ओके, फीट विल रिमेन फ्लैट। तो फीट ऐसे रखने नहीं है,
फीट आपको सुला के रखने व्हेन यू डू इट। अभी ध्यान से देखिए करना क्या है। सांस भरते भरते हमको फेस को ऊपर उठाना है और हमको कमर को नीचे प्रेस करना है टू द एक्सटेंट दैट योर नेक अलाउज। लेट्स से किसी दिन आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको नेक में बहुत पेन है, तो ज्यादा ऊपर मत उठाइए, कम उठाइए, दैट इज ओके, लेकिन कमर को नीचे आपको पुश करना है। फिर सांस छोड़ते छोड़ते आपको एब्डोमेन को अंदर लेना है, बैक को आपको राउंड करते जाना है, चेस्ट पूरा हॉलो, चिन पूरी अंदर। फिर से सांस भरते भरते हम फेस को ऊपर उठाएंगे जितना आपका नेक अलाउ करता है, कमर को नीचे पुश करें। फिर सांस छोड़ते छोड़ते आप एब्डोमेन को पूरा अंदर लेंगे, बैक को पूरा राउंड करेंगे, चिन को पूरा अंदर लेंगे। ये आपको कम से कम 15 बार करना चाहिए। आज की क्लास में हम 10 बार ही करेंगे। वंस यू आर डन, फिर आप इस तरह से, आप चाहे तो नीज में और डिस्टेंस कर सकते हैं टू मेक द अपर बॉडी मोर कंफर्टेबल। देन यू टेक योर हिप्स टुवर्ड्स द हील्स एंड you rest in what is known as the child pose. Next asana that we are going to do is one of the best poses you can practice for strengthening the spine. It's called Bhujangasana or Cobra pose. बहुत ही सिंपल है। अगर किसी को बैक में पेन है तो इनिशियली ये करना आपके लिए चैलेंजिंग रहेगा, but let me tell you that even if you go to a physiotherapist complaining of back pain, 9 out of 10 times you will be recommended the Bhujangasana. Okay, तो अगर आपको तकलीफ है भी तो start small. Maybe you can hold it only for 3 seconds if not 10 seconds, लेकिन शुरू करना जरूरी है। और अगर आप रोज करेंगे, भले आप एक ही रेपिटेशन करें, यू नो वी समटाइम्स थिंक कि अगर हमको प्रैक्टिस करना है तो पूरा 1 घंटा करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप 5 मिनट के लिए भी करते हैं लेकिन रोज करते हैं तो उसका बहुत बेनिफिट होता है। तो एक बार आप पहले भुजंगासन ध्यान से देख लेंगे। आई विल डेमोन्स्ट्रेट, आई विल ऑल्सो शो यू द कॉमन मिस्टेक्स दैट पीपल मेक इन भुजंगासन, ताकि जब आप करें, भले आप एक ही रेप करें, भले आप 10 सेकेंड ही होल्ड करें, लेकिन आप सही तरीके से करें। ओके, सो वॉच दिस एंड देन यू प्रैक्टिस। So we are going to lie down for this on the belly. You will lie down face down like this. जब आप लेटते हैं आप अपना फोरहेड या चिन दोनों में से कोई भी एक चीज जमीन पर रखेंगे, ऐसे नेक को ऊपर नहीं रखेंगे। ओके, आपके पैर जो है वो मैक्सिमम आप हिप विड्थ अपार्ट रखेंगे, पैर के पंजे सुले हुए। सो टोस को इस तरह से स्टैंडिंग नहीं रखना है, आपको पैरों को सुला के रखना है। और दोनों हाथ जो है आप अपनी चेस्ट के अगल बगल रखेंगे। Now, whenever you place your palms down, spread out your fingers. Do not use a closed palm. Always spread out the fingers. Place them like this. Okay? Forehead या chin जमीन पे। अब जब आपको ऊपर आना है, use your back more than your hands. तो सांस भरते हुए आप धीरे धीरे ऊपर आए। एल्बोस को थोड़ा सा सॉफ्ट ही रखें। Now, based on my experience of working with people with severe pain areas, I realize that sometimes लोग बहुत कम ऊपर आ पाते हैं। इससे ये होता है कि आपको हाथों पे ज्यादा प्रेशर होता है, बट इफ योर बॉडी कैन मैनेज डू दैट। अगर आप ज्यादा ऊपर आ सकते हैं तो आपका बैक का इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाता है। एल्बोस थोड़े से सॉफ्ट रहेंगे, हमको हिप को ऊपर नहीं उठाना है, हिप हमारा नीचे ही रहेगा। और हमको ये नहीं करना है, दिस इज नॉट गुड फॉर द शोल्डर्स और फॉर द नेक। You have to make sure that your neck is completely relaxed, your shoulders are away from your ears. Chest will be open, belly will be stretched. We will stay here for 10 seconds if you can. फिर आप धीरे धीरे नीचे जाएंगे, फिर आपको मकर आसन में रेस्ट करना है, वो देख लीजिए। उसके लिए आप दोनों पाम्स एक दूसरे के ऊपर रखेंगे, फोरहेड इन पाम्स पे रख देंगे, पैरों में आप गैप इंक्रीज करें और पैर के पंजे साइडवेज फेस करेंगे। तो मेरे इस पैर के टोस स्क्रीन को फेस कर रहे हैं, दूसरे पैर के टोस उस सोफा को फेस कर रहे हैं। इस तरह से आप रेस्ट करेंगे, पूरी बॉडी को रिलैक्स करेंगे। आराम से बैठ जाइए। और अगला वाला आसन बहुत ज्यादा जरूरी है। आई अंडरस्टैंड कि आप लोग बहुत देर बैठ के भी काम करते हैं, बहुत देर खड़े खड़े भी आपको काम करना पड़ता है। नाउ व्हाट हैपेंस इज कि दैट इज हाउ वी आर डिजाइंड कि हम खड़े भी रहेंगे, हम बैठेंगे भी। मोर सो खड़े रहने के लिए हमको डिजाइन किया गया है, बैठने के लिए नहीं। तो क्या होता है कि हमारी बॉडी की जो वेट बेयरिंग जॉइंट्स है ना, वो ऑब्वियसली सारे लोअर बॉडी में है, क्योंकि अपर बॉडी से तो हमको चलना ही नहीं होता है। तो हमारे जो, आप अपना पेल्विक गर्डल ले लीजिए, आप अपने नीज, अपने एंकल जॉइंट्स, जो भी जॉइंट्स आप लेते हैं ना, so the largest bones of the body are in the lower body, the largest muscles are in the lower body. That is how nature designed us. Okay,
तो क्योंकि हम बहुत देर आप लोगों को खड़े रह के काम करना होता है, तो इन जॉइंट्स के ऊपर भी बहुत वेट आता है, इन मसल्स को भी बहुत फटीग हो जाता है. सो मोनिका टेल्स मी दैट फटीग इज अ वेरी कॉमन पार्ट ऑफ अ बेकर्स लाइफ, ऑफ अ डेली लाइफ. तो उस फटीग को आपको कैसे खत्म करना है, उसके लिए बहुत सिंपल आसन है. ट्रस्ट मी, अगर आप ये आसन रोज करते हैं बिफोर गोइंग टू बेड, आपकी स्लीप की क्वालिटी भी बहुत इंप्रूव हो जाएगी. आपको you will go to bed with a very clear mind, with a mind that is not racing with thoughts. Okay, and there are many more benefits which I will tell you. Now this is called viparit karni. Viparit means opposite. Opposite of what? तो सारा दिन हम खड़े रहते हैं ना, हमारा सर ऊपर होता है, हमारे पैर नीचे होते हैं. अब हम लोग विपरीत करनी करेंगे, जिसमें हम इसको उल्टा कर देंगे, मतलब हमारे पैर ऊपर जाएंगे, सर हमारा नीचे नहीं जाएगा. एज इन वी आर नॉट डूइंग अ हेड स्टैंड, वी आर डूइंग अ वेरी सिंपल restorative pose. Now, restorative pose itself means it is restoring something. So, what is it restoring? It's restoring your energy. Okay? तो एक बार ध्यान से देखिए, उसके बाद करिए. अब इसके लिए आपको या तो एक लॉक्ड दरवाजा, या तो एक दीवार, या तो एक वार्डरोब जैसे किसी चीज की जरूरत पड़ेगी. यू कैन सी द वॉल बिहाइंड मी. आई एम गोइंग टू गो देयर एंड डेमोन्स्ट्रेट. आप भी जो है अपने रूम के डायनामिक्स के हिसाब से वॉट एवर वर्क्स फॉर यू, पहले आप देख लीजिए, उसके बाद आपको ये करना. तो wherever you are practicing, आप जरूर अपनी मैट भी वहां पर ले जाएं. दैट इज इम्पोर्टेंट. अब हर किसी के बॉडी की बनावट अलग होती है, तो कुछ लोगों को ना बिना तकिए के लेटना बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होता है. इफ दैट हैपेंस विथ यू, आप जरूर से तकिया यूज कर सकते हैं. ओके, सो व्हाट वी विल डू इज we want to take the legs up the wall. Vipreet Karni is the legs up the wall pose. Let me try and give you an even better angle if possible. Okay. तो इस तरह से आप पहले बैठेंगे. यू स्टिक योर ऐसे साइड में. तो मेरे पास तो खैर ये वॉल बेंड हो रहा है, आपके पास नहीं तो आप पैर सीधे रख सकते हैं. आपको हिप्स पूरे चिपका देने हैं, और फिर आपको इस तरह से बैक पे लेटना है, ताकि जब आप पैर ऊपर लें तो आपके हिप्स चिपके हुए. अगर चिपके हुए नहीं है तो इस तरह से एक पैर को फोल्ड करके आप थोड़ा सा और आगे जाके यू मेक श्योर दैट द हिप्स स्टे. नाउ इन सम केसेस व्हाट हैपेंस इज कि कुछ लोगों का बैक जमीन पे टच नहीं होता है. इफ यू आर वन ऑफ दोस पीपल, यू मे वांट टू कीप अ पिलो और सम कुशन्स हैंडी. तो आप अगर जरूरत पड़ी, अगर ये गैप है, तो आप कंफर्टेबल नहीं होंगे. तो वो गैप ना हो उसके लिए आप नीचे बेडशीट्स या ब्लैंकेट्स या कुछ भी ऐसा इंसर्ट कर सकते हैं. पैर आपको सीधे रखने, हाथ आपको अच्छे से साइड में खुले रखने. Alright? Now, when you do this, as you stay in the pose, I will tell you all the benefits that come from this. तो कुछ देर हम इसमें ठहरेंगे, एटलीस्ट फॉर 1 मिनट हम इसमें ठहरेंगे. उसके बाद जब आपको उठना है, तो जिस तरफ भी आपके पास स्पेस हो, एक हाथ आप पीछे ले जाएंगे, आप दोनों पैरों को फोल्ड करके इस तरह से साइड में आ जाएंगे और करवट लेकर उठेंगे. जब भी जमीन से उठें, करवट लेकर उठें. इट्स अ वेरी हेल्दी प्रैक्टिस टू फॉलो. ओके, आ जाइए. very beneficial, and somehow I feel very soothing, and the mind kind of goes into a very relaxed mood all this early in the morning, and then you just kind of get a little more energy to carry on with the day. So, and thank you, because yes, this course I think really was a blessing. It just made me relax so much. Like I felt like going to sleep in that mood. So yes, thank you so much, and I am. Honestly speaking, I am very grateful to you for conducting this session. I am equally a little disappointed with the kind of numbers that have turned up, but it's fine. I think people do not understand the importance of health, and that's the most important challenge that we all are dealing with. Health is something that people put on the last in their priority list till something very drastic happens, and then you start moving around and you start looking for doctors and therapists and yogas and this and that. But never they people do not take yoga or health, taking care of their health as a preventive measure. Like, if you do this, then probably you will not need to go to doctors and run around in emergencies, etc. These are like simple things. Like I see a lot of bakers, they have started physiotherapy because they have frozen shoulders, they have continuous back pain and neck and eyes pain because of the detailing work that we do.
But that was precisely the reason why I wanted to do this workshop, and I'm happy for whoever has joined it. I will try and share the recording for people's benefit, but it is said you can only take a horse to the pond, you can't make him drink water. So I am taking them to the pond, drinking water is going to be up. Thank you. Thank you so much, Monica. I'm really touched, and I have always appreciated how selflessly you like to share, you know. तो आपको अपनी community के लिए करना था, and I was more than happy to be a part of it. It's my joy and privilege. अगर किसी एक इंसान की भी life better हो सकती है, then you know, I think the job is done. So thank you so much. I will definitely share the recording with you guys. Have a lovely day. I hope you feel the difference when you work today, you know, क्योंकि काम तो करना ही है, उससे तो हमको ब्रेक नहीं मिल सकता। बट ये जैसे गाड़ी को हम सर्विसिंग के लिए भेजते हैं, हम कितना डिलीजेंटली भेजते हैं ना, तो हमको अपनी Correct. बॉडी के लिए भी रोजाना कुछ ना कुछ करना बहुत जरूरी है। थैंक यू मोनिका, हैव अ ग्रेट डे।